Morning all of you. Hello all students. Now today we are going to continue. After this I have explained till this IDP, that is the initial decision parameter for region 1 of the ellipse. If you want to see again, you can see the previous lecture again for this. Now after this I am continuing with this midpoint between the candidate pixel in region 2, we can say. Now we are starting for the region 2. Now that we are similarly calculating this over the region 2 unit step. Here it is given, so here the candidate pixel is given. Before this, that was given for the y x-axis. Now here we are seeing this particular candidate pixel is given. Here the arrows are given. These two are the candidate pixel, that is according to this xk and xk plus 1 and yk minus 1 will be as it is constant. And here now in the negative y direction, and the midpoint is now taken between the horizontal pixels at each step. Now for each for this region, the decision parameter is evaluated as follows. Now this particular part is given p2k, that is the initial decision parameter. For the second part, now the f ellipse is given here. Now xk plus half, y xk plus half is given here. We can see here xk is given, here xk plus 1 is given. The middle point will be xk plus half. Okay, and here the yk minus 1 is given, राइट. तो वाई के माइनस वन, यहाँ पे जो कैंडिडेट पिक्सल है जो वाई के माइनस वन वाली लाइन में आ रहा है, इसलिए वाई के माइनस वन रहेगा एज इट इज़. और यहाँ पे मिडल पॉइंट हाफ आएगा, राइट. सो दिस विल बी द p2k. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट यूजिंग द फॉर्मूला. Now when using these two in place of x and y, we will get this ry square into x square की जगह यहाँ पे x square plus half square लिखा है, ठीक है, plus rx square into yk minus 1, that is in the place of this y, minus rx square into ry square. If p2k is greater than 0, we have to calculate this part using this radius and x and y coordinates, whatever it is. So now after that we will get some value of this p2k. So that if it will be greater than 0, then we can say that the midpoint जो होगा ना वो ellipse boundary के बाहर की साइड होगा, ठीक है. and we can select the pixel at xk. now अगर वो it is less than equal to 0 है, then it is inside लेस देन 0 होगा तो इनसाइड होगा, और अगर इक्वल टू 0 होगा तो ऑन द एलिप्स बाउंड्री आएगा. एंड वी हैव टू सिलेक्ट xk प्लस 1. अगर ग्रेटर देन 0 है देन वी हैव टू सिलेक्ट xk, एंड इफ लेस देन इक्वल टू 0 है देन वी हैव टू सिलेक्ट xk प्लस 1. तो दोनों में से एक पिक्सल को हम लोगों को चूज़ करना होता है, या तो xk को चूज़ करेंगे या xk प्लस 1 को. ग्रेटर देन 0 होगा तो xk को चूज़ करना है और प्लॉट करने के लिए. अगर लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो xk प्लस 1 चूज़ करना है. नाउ आफ्टर दिस एट द नेक्स्ट सैम्पलिंग पोजीशन डिसीजन पैरामीटर इज इवैल्यूएटेड एज लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट जो पैरामीटर होगा, अभी p2k फाइंड किया था, वैसे p2k प्लस 1 भी फाइंड करना है. यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 लगा देंगे, फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, राइट. तो वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला नाउ, right. So after getting this formula we are subtracting this particular part with the p2k, ठीक है ना. तो माइनस p2k करेंगे तो we are getting this part, and after evaluating this we are getting this overall. उसको completely अगर ओपन करेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा. ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे yk माइनस वन होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसको ओपन करने के बाद फिर फाइनली वी आर गेटिंग दिस, एंड उसको इवैल्यूएट किया हुआ है. अगर इवैल्यूएशन आपको समझ में नहीं आता तो मैं फिर से समझा दूंगा, यू कैन आस्क दैट एज अ डाउट, ठीक है. ब्रैकेट्स को ओपन करते जाना है, स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसको ओपन करते जाओ एंड फाइनली यू विल गेट सम फॉर्मूला. एंड हियर द आर वाई स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ, सो दे हैव टेकन कॉमन इन बोथ. at the next in the next we are getting this part. now making p2k plus 1 as a subject, p2k plus 1 मतलब फॉर्मूला हम लोग को इसके लिए चाहिए, इसके लिए p2k वाला जो पार्ट है वो सामने चला जाएगा. तो p2k यहाँ पे आ गया, माइनस में था तो प्लस में आ गया. p2k माइनस दिस होल पार्ट वी आर गेटिंग एज एन आंसर फॉर दिस p2k प्लस 1. मतलब नेक्स्ट पैरामीटर के लिए हम लोगों को ये डिसीजन पैरामीटर वाला पार्ट यूज़ करना है. नाउ हियर xk प्लस 1 इज़ आइदर xk
और एक्स के प्लस वन डिपेंड्स ऑन द साइन ऑन पी टू के। यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस होगा, या फिर लेस देन ज़ीरो होगा तो फिर दैट यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वी हैव टू यूज एक्स के प्लस वन, और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वी हैव टू चूज दिस एक्स के. So initial decision parameter here it is given. Now here the initial position is selected, which is the last position, region 1, and the initial decision parameter is calculated as follows. Now P20 is equal to this f ellipse x0 plus half comma y0 minus half. Now here P20 is equal to here P20 is equal to what? Now ry square x0 plus half square now प्लस आर एक्स स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला जो है इसमें x और y की जगह ये वाला पार्ट यूज़ किया हुआ है. एंड फाइनली वी आर गेटिंग दिस. फॉर सिंप्लीफाइंग इक्वेशन ऑफ P20 वी कुड ऑल्सो सिलेक्ट द पोजिशन इन द काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डर आर एक्स कॉमा 0. So here when this is an algorithm now taken after the initial decision parameter is finalized. So here the two different radius are there, rx and ry. Rx is on the x-axis and ry is on the y-axis. एंड एलिप्स सेंटर दिया हुआ है एक्स सी कॉमा वाई सी. अगर खुद से दिया है तो ठीक है, नहीं तो एक्स ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इज़ द कॉमन पार्ट दैट वी हैव टू टेक. Obtain the first point on an ellipse centered on the origin x0 comma y0 is equal to this. That is the first point that we have to take, right? So that is 0 comma ry we have to start. So here 0 comma ry कहाँ पर होगा? On the, we can say it is on the x it is on the y axis, I think, right? It is on the y-axis. So we are starting at the in the clockwise order, we can say. So we have to calculate this P10 first of all using this formula. So P10 का फॉर्मूला ये होगा, तो 0 कॉमा ry यूज़ करके हम लोग ये फॉर्मूले का आंसर ढूंढेंगे. एंड फाइनली वी विल गेट सम आंसर फॉर दिस. rx और ry की जो भी वैल्यू दी रखी होगी. एट रीजन x के पोजिशन इन रीजन 1 स्टार्टिंग एट k इज इक्वल टू 0, परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट. वी हैव टू चेक दैट P1k इज़ लेस देन 0 और नॉट. ये जो आंसर आएगा ये लेस देन 0 है या नहीं है वो चेक करना है. इफ इट इज़ लेस देन 0 देन वी हैव टू चूज दिस xk प्लस 1 कॉमा yk. एंड फाइनली P1k प्लस 1 हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से. 0 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उस तरीके से P11 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर P12 की, फिर P13 की, ऐसे 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे. एंड द नेक्स्ट पॉइंट अलॉन्ग दिस ellipse is xk plus 1 comma yk minus 1. ओके, तो xk plus 1 तो ऑलरेडी था ही. नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा yk minus 1 एंड P1k अदरवाइज वाला पार्ट है. अदरवाइज मतलब क्या होगा, यहाँ पे लेस देन 0 दिया है, मतलब अदरवाइज में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में xk plus 1 comma yk minus 1 यूज़ करना है. एंड द P1k plus 1 विल बी दिस विद, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज हियर, दैट इज 2 ry square into xk plus 1, that is given, that is equal to this part. Second part is also given, 2 rx square comma yk plus 1, that is also given here. तो उसका पार्ट यहाँ पे इसको ओपन करके फिर फाइनली ये वाला सॉल्व किया हुआ है, दैट इज हियर. एंड फाइनली एंड कंटिन्यू, वी हैव टू कंटिन्यू टिल व्हाट, वी हैव टू कंटिन्यू अंटिल 2 ry square x is less than 2 rx square y. तो ये वाला कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रहा है तब तक इस चीज़ पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव टू फॉर डू दिस सेम पार्ट फॉर द रीजन 2 यूजिंग द लास्ट पॉइंट दैट इज x0 comma y0 calculated in region 1. So here we have to take this P20 we have to calculate. For that we have to take this x0 plus half as we have already seen, and y0 minus 1. And finally we are calculating this part, and in that we have to check for k equal to 0 से स्टार्ट करेंगे. तो we have to check whether it is greater than 0 or not. greater than 0 होगा तो xk comma yk minus 1 लेंगे, एंड P2k plus 1 की वैल्यू ये वाला कैलकुलेट करेंगे. अदर नहीं होगा तो क्या करेंगे, xk plus 1 comma yk minus 1 करेंगे, और P2k plus 1 की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. और ये
and using the same incremental calculations for x and y as in region 1 we can say. और इसी तरीके से सिमेट्री पॉइंट्स जो होते हैं जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीनों क्वाड्रेंट में, तो बाकी के एलिप्स के पॉइंट्स भी मिलेंगे उससे. सो मूव ईच सिमेट्री पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, और सेम वैल्यू अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट उसके लेफ्ट साइड में आता है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा एक्स वाला जो पार्ट है माइनस में होगा, वाई वाला पार्ट पॉजिटिव में होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी, बस एक्स वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा. थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, एक्स एंड वाई वैल्यू विल बी सेम, साइन चेंज हो जाएगी. फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाते हैं तो एक्स और वाई वैल्यू सेम रहेगी, वाई पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स विल बी पॉजिटिव एंड वाई विल बी नेगेटिव, वैल्यूज विल बी सेम. So in this way we have to find all the symmetry points for all the points we have find out. So move each calculated pixel position onto the elliptical and plot the coordinate values, we can say x is equal to xc and x plus xc and y is equal to y plus yc, and we have to repeat the steps until the yk is greater than equal to 0. Now example here it is given, that is midpoint ellipse algorithm, here it is given. Now we have to calculate this for ellipse with rx is equal to 8 and ry is equal to 6 and ellipse center is at origin. Now 0 comma ry is equal to 0 comma 6 here we can say. So here ry की जगह पे यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये rx और ry की वैल्यू आपको दे रखी है, तो स्टार्टिंग हमने 0 कोमा ry से स्टार्ट किया, उसके अकॉर्डिंग 0,6 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला में फिर वो वैल्यूज़ डालेंगे. ry की वैल्यू 6 है, rx की वैल्यू 8 है, तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने पुट किया, तो फाइनली वी आर गेटिंग -332. दैट इज़ द वैल्यू वी आर गेटिंग, दैट इज़ लेस देन 0. और वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर देंगे वैल्यू को xk + 1 yk + 1. सो फर्स्ट वैल्यू जो हम लोगों ने देखी थी वो क्या थी, स्टार्टिंग में 0,6, वो प्लॉट हो गई. उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी -332 के अकॉर्डिंग, अगर लेस देन 0 है तो वी हैव टू इंक्रीमेंट इन द x पार्ट एंड y पार्ट विल बी एज इट इज़. सो हियर 1,6 विल बी द पार्ट. सो हियर नेक्स्ट पार्ट हियर वी कैन सी p1k + 1, यहाँ पे अगेन कैलकुलेट किया हुआ है नेक्स्ट पार्ट हियर, तो यहाँ पे -224 आया. तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलर पार्ट हमको क्या चेक करना है, कब तक ये पार्ट कंटिन्यू रहेगा, तो वी हैव टू कैलकुलेशन स्टॉप व्हेन rx 2rx² इज़ ग्रेटर देन 2rx²y. सो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तब जाके हमको पता चलेगा कि ये वैल्यू कहाँ पे स्टॉप करनी है हमें. ना यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ़ p1k इज़ लेस देन 0 दैन वी हैव टू सिलेक्ट yk + 1 इज इक्वल टू yk एंड वी हैव टू सिलेक्ट yk + 1 और एल्स वी हैव टू सिलेक्ट -1. ओके, अगर लेस देन 0 होगा तो. सो हियर ना p1k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है. सो वी हैव टू टेक हियर 2 एज मतलब इंक्रीमेंट डन इन द x पार्ट एंड y पार्ट विल बी एज इट इज़, वी कैन से. ठीक है ना, लेस देन 0 है इसीलिए. अगर लेस देन 0 नहीं होता तो एक y वाले पार्ट में डिक्रीमेंट आ जाता. नाउ हियर again we are calculating this, we are getting -44 as our answer. So again we have to check this, we are checking this whether it is satisfying that condition or not. So here it is satisfying. So p1k is less than 0, then again xk one part will be incremented and y part will be as it is, 6 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. ना इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन फिर से कैलकुलेट किया, p13 की वैल्यू 208 आई, दैट इज़ ग्रेटर देन 0. सो हियर ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पे जो ये नेक्स्ट नीचे वाला जो पार्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दैट हियर इट इज़ गिवन दैट p1k इज़ लेस देन 0 और नॉट. अगर नहीं होगा तो क्या होगा, y वाले पार्ट में डिक्रीमेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, राइट. तो 5 आ गया और x वाले पार्ट में इंक्रीमेंट तो हो गई. नेक्स्ट अगेन वी आर चेकिंग -108 आया, तो -108 में अगेन हम लोग क्या करेंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि लेस देन 0 है और x पार्ट में इंक्रीमेंट होगा, दैट विल बी 5. नाउ नेक्स्ट हियर अगेन 288, दैट विल बी ग्रेटर देन 0. सो x y वाले पार्ट में डिक्रीमेंट और x वाले पार्ट में इंक्रीमेंट, 6,4 विल बी द पॉइंट. नाउ
244 दिया हुआ है, दैट इज अगेन द ग्रेटर देन 0. सो हियर y वाले पार्ट में डिक्रीमेंट होगा, x वाले पार्ट में इंक्रीमेंट 7,3 विल बी द डन. नाउ नेक्स्ट पार्ट -23 आ रहा है. अब ये यहाँ पे P1 तक था, ठीक है. इसके बाद में हम लोगों ने चेक किया तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, बिकॉज दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग नाउ. This condition is satisfying, so we have to stop here. We have to start with the next region, that is P20 now. So here this particular formula is given for the P2. Now here the values are to be put. So finally after calculating we are getting this -23 as an answer. So -23 is less than 0. So what we have to do here, so we have to calculate till yk should be less than equal to 0. So here now P2 is here given, that is if it is greater than 0 then we have to do xk plus 1 is equal to xk, and if it is less than 0 then we have to do the increment part in the xk part. So here now we are starting with the, here x0 part is given as 7, so we have to do the increment, that is 8 here, right? And yk part we have taken 3, right? So yk part we have, y's part we have taken 3, so we have to do the decrement, that is 2 here it is given. So again here the value, now here the value is given. Now here we can see the 361 is given here, so 361 is given here, so 8,1 is given here. क्यों है 8,1? बिकॉज यहाँ पे x वाले पार्ट में इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि इट इज़ ग्रेटर देन 0, और y पार्ट में डिक्रीमेंट होगा एज, तो वो तो हो ही रहा है इसमें, राइट. नेक्स्ट में क्या आ रहा है 297, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो x पार्ट एज इट इज़ रहेगा, y पार्ट में डिक्रीमेंट होगा. नाउ अब इसमें और नीचे जाएगा तो क्या होगा 0 y, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है नीचे, दैट yk शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 तो आ ही चुका है, सो दैट हियर वी हैव टू स्टॉप. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर गेटिंग. सो फाइनली वी हैव टू प्लॉट दैट पॉइंट्स, एंड so we have to start with the initial point 0,6, and finally we are plotting all the points with the given origin 0,0, and this is all about the ellipse part, that is a midpoint algorithm. You can practice this by your own by taking some other radius, and finally we will meet for the next part of this chapter in the next lecture. And thank you, and if any doubt you can comment in the YouTube video below, or otherwise you can ask in the WhatsApp. So you have to you can ask, and thank you for watching this lecture.